know. Got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up. I'm slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had things back then. I'm on the hip in case the obstacle. My homies had me always had the hook up. You do it. Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup. सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वंस अगेन भाई मैं आ गया हूँ भाई एक नया व्लॉग लेके। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट सिस्टम which is this MIV Mark III carbon exhaust and the type of setup which I have got. I'll be talking it in detail कि भाई उसके अंदर क्या setup है, कैसे मैंने करवाया, ठीक है। So I've got two of my friends here, Kunal and Sushant. Sorry. So they'll be just recording me side by side as I provide the details about the exhaust. So it goes. So गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बाइक के बारे में बता देता हूँ कि ये है Kawasaki Z900 which is a 2020 model and this is the flagship color when it was launched in November 2019. So this was I think the third or maybe the fourth bike in Delhi when I purchased it. So any which ways, you already know about the configuration, how the information about the engine and its specifications. So let's talk about the exhaust. So the reason I'm making this vlog is that this particular exhaust you might not have seen on the Kawasaki Z900 because it is very rare. And I should say that it is very underrated exhaust. But any which ways it is very loud. आपको मैं एक flyby भी दिखा दूंगा इसका कि ये कैसा साउंड करता है। And इसका जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि it is very soothing. And after you listen to the sound which comes from this particular exhaust, आपको खुद लगेगा यार कि हाँ भाई ये एग्जॉस्ट इज़ वेरी गुड। सो जब बात करते हैं यार महंगे एग्जॉस्ट सेटअप्स की कि जैसे एसी प्रोजेक्ट हो गया, एरो हो गया, वगैरह वगैरह, बट दिस इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। पहली बात करेंगे कि ये सेटअप कैसा है भाई। तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं डी कैट सेटअप, ठीक है। सो जनरली मैं बता देता हूँ, वी हैव गॉट द स्टॉक हेडर्स, ठीक है। जब कंपनी से स्टॉक एग्जॉस्ट आता है तो they have got these stock headers. Then we have got this bread box. You can see it on the screen what bread box is. And then we have got the secondary muffler which is called your exhaust, ठीक है। तो actually इसके अंदर दो muffler होते हैं, एक होता है primary which is also called the bread box and the secondary muffler which you generally call the exhaust. तो अब बात करते हैं भाई DCAT की। So DCAT के अंदर the stock headers are the same. Then we have got the catalytic converter intact. Then we have got this mid pipe which has been changed in the place of the bread box, and then we have finally got the aftermarket end can which is the MIV Mark III carbon, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें मैंने इसकी चेंज कराई हैं एंड दिस कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ इंटैक्ट एंड द स्टॉक हेडर्स आर इंटैक्ट, ठीक है। सो अब मैं इसका एक बेनिफिट बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट है भाई, इसका रीज़न बता देता हूँ कि मैंने क्यों कराया और ठीक है इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली चीज़ इसका जो प्राइस है भाई, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। विदिन 50,000 यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट सिस्टम इंक्लूडिंग दिस मिड पाइप एंड दी एंड कैन, ठीक है। सो दी एग्जॉस्ट कॉस्टेड मी अराउंड 33,000, ठीक है, एंड द मिड पाइप कॉस्टेड मी अराउंड 10,000। सो ऑलमोस्ट यू कैन से 42-43,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट टोटल पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो इंटैक्ट है। सो उससे होता ये है कि जो बैक प्रेशर है, सो देयर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड बैक प्रेशर, ठीक है। मुझे डिटेल में खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली होती क्या है, लेकिन बैक प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइक्स एग्जॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो अगर बैक प्रेशर नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हेन द कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ देयर देन बैक प्रेशर इज़ ड्यूली मेंटेन्ड। सो वन ऑफ द अदर रीजन्स इज़ अबाउट द ट्यूनिंग। सो जब भी आप एक फुल सिस्टम लगवाते हो, ठीक है,
so you might require tuning so that the performance is enhanced on your bike. तो अब इसके अंदर ये खास बात है कि जब आप इसको लगवाते हो, ठीक है, जो ये एंड कैन है एंड मिड पाइप जो डीकैट सिस्टम है, इसके अंदर आपको ट्यूनिंग की देखो ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है। मैंने तो देखो कभी नहीं करवाई एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 4 years दैट आई हैव बीन राइडिंग विद दिस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट सिस्टम एंड मेरे को भाई देखो कभी भी परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी इशू नहीं आया, ना ही सर्विस रिलेटेड, ना ही कोई एक्सेलरेशन या फिर कुछ भी इंजन वाइज हो, तो कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक, अब इसके अंदर सिर्फ जो एक एक्स्ट्रा मैंने चीज़ लगाई है वो है DNA का एयर फिल्टर, जो कि देखो अब जो बैक फ्लो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसी को इक्वलाइज़ करने के लिए भाई DNA का एयर फिल्टर लगाना मेरे को ज़रूरी हो रहा था, इसके ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सांस ले पाए, राइट। एंड भाई जो एक लास्ट मैं इसका बता देता हूँ कि जो एक फुल सिस्टम की जो साउंड होती है ना भाई, वो कभी ना कभी आपको देखो इरिटेट बहुत ज़्यादा करने वाली है एंड इन कंपैरिजन टू द साउंड ऑफ द डीकैट सिस्टम ये साउंड बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होती है, ठीक है, ये आपको इतना परेशान नहीं करती। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब भी भाई आप रेड लाइट पे खड़े होगे ना, कभी भी इसकी आवाज़ नहीं आएगी, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड, ठीक है। जो डीबी लेवल्स होते हैं इसके वो बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट के जितने हैं उससे हल्के से ज़्यादा होंगे, लेकिन नॉट दैट मच लाउड। अब वहीं पे ले लेते हैं भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो फुल सिस्टम के अंदर आपको पता है बिल्कुल ही फ्री फ्लो होता है, तो आवाज़ का देखो कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एंड एज अ रिज़ल्ट भाई बहुत ही गंदी आवाज़ आती है। इवन यू नो अ पर्सन स्टैंडिंग 20-30 मीटर्स अवे कैन लिसन टू दैट पर्टिकुलर साउंड। और ये ट्रैफिक लाइट्स पे या फिर व्हेन देयर इज़ अ यू नो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है हमारी भाई, वो जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे भाई इस चक्कर में। तो दैट वाज वन अनदर रीज़न। सो दैट इज़ इट। एंड भाई अब बारी है इसकी आवाज़ सुनने की। मैं आपको पहले तो इसका स्टार्ट करके दिखाऊंगा, देन आई विल शो यू वन फ्लाई बाय वीडियो वेयर यू विल गेट टू लिसन टू द एक्चुअल साउंड व्हेन द बाइक फ्लाइज बाय, ठीक है। तो चलो भाई साउंड सुना दो। भाई जैसे आप सुन पा रहे होगे इसके अंदर कोई फालतू की आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे भड़बड़ाती हुई आवाज़ होती है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सूदिंग साउंड। अब जब मैं इसका रेव दूंगा तभी आपको ये साउंड आएगा। रेव का साउंड। अब मैं इसका एक फ्लाई बाय दिखाने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। आप बताना भाई कमेंट्स में कि इसकी आवाज़ कैसी थी, ठीक है। चलो जी, रेडी टू गो। भाई ये था इसके फ्लाई बाय। एंड अब आप कमेंट सेक्शन देखो यार, आपका है, आप बताना कि इसका जो साउंड है वो कैसा रहा भाई। एंड मेरे को तो भाई पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड तो भाई आज के लिए देखो इस व्लॉग में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को कर देना
सब्सक्राइब एंड वीडियो को भाई कर देना लाइक, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। एंड येस गाइस, आई वाज सरप्राइज। तो आपने तो यार देखो मेरे को ज़्यादातर Z900 आपने देखा होगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंट बाइक विच आई वांटेड टू शोकेस ऑन माय चैनल। तो एक बार जस्ट जरा जो कैमरा है इसको ऐसे घुमाओ तो आपको बाइक दिख जाएगी ना एग्जैक्टली भाई लोग। So that is the R15M version and that is going to be appearing on my channel in the next video. So that was all for today and वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर ठोक देना and तब तक के लिए भाई जय श्री राम, टेक केयर। Me what you want, don't ever